Okay, so this is your syllabus, and we have discussed about this in the previous class. Now tell me, there are some more definitions, and there are something regarding the definitions. So since you have learned something before in SQL query, so let me ask you, what do you mean by this DDL command, data definition language? What is the meaning of this? What is the meaning of this data definition language? Anybody can tell me what Ma'am, is it meant defines by different data structure. data structure in MySQL? What type of data structure? Can you give me some example? Some example in MySQL where we will use DDL. I Anyone? mean creation or deletion of table. Right. When we create or delete the table, that comes, some other commands also come under DDL. We will study them later. And for now, just have an idea. When we create a database or when we create a relation, this type of, when we are defining something, this type of commands are known as a DDL command, data definition language. Okay. Now, can anyone tell me what is DML, data manipulation language? What is this one, data manipulation language? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहाँ पे यूज होता है? मैम डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाँ. हम कुछ हम लोग इंसर्ट करना चाहे डेटा या फिर कुछ अपडेट करना चाहे. Okay, that means you are telling that when we try to change anything in the data, you are trying to say that. Can you give me some example of DML commands? मैम इंसर्ट अपडेट सिलेक्ट And okay, and some examples of DDL command. क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप. Very good. What is your name? मैम Who is giving सोमूजित. the answer? Okay. ओके, सो डीडीएल के अंदर क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर्ड, ट्रंकेट, इस तरह का जो कमांड है, ये कमांड आता है. डीएमएल के अंदर आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब कमांड आता है. ठीक है, ऑल दिस कमांड कम्स अंडर डीएमएल. ओके, सो नाउ data type. So in your, as per your syllabus, there are five data types as per your syllabus: char, varchar, int, float, date. Okay. So who will tell me what is the difference between char data type and varchar data type? What is the difference between char data type and varchar data type? Ma'am, char has a limited Varchar has a limit of varchar also has the limitation, ना? कैड और वेडकर दोनों का ही देखो, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एन. दैट मीन्स एन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू कैन input when you are creating a data table. If you are mentioning a data type, say name, then you are giving cad, then you are giving 40, then 40 is the maximum length of the name. In varchar also, if you are giving name, then varchar, then 40, then 40 is the maximum length of the name you can input. सो इन दिस केस बोथ ऑफ देम आर सेम. कैर का भी एक लिमिटेशन होता है, वर्कर का भी एक लिमिटेशन होता है. सो आई वांट टू नो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम. इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? कैड और वर्कर के अंदर एनीवन? Okay, let me tell.
से आई एम डिफाइनिंग अ नेम देन varchar देन 40. ठीक है, अब सोचो मैं इस क्लास का जो स्टूडेंट्स है, इन स्टूडेंट्स का डेटाबेस में क्रिएट करूंगी. तो इन लोगों का नाम क्या है? आयुष है, हितेश है, अंकिता है, समजीत है, अनीशा है. ठीक है, तो अगर मैं इस तरह का नाम 10 छोड़ो से आई एम व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो से आई एम गिविंग मैक्सिमम लेंथ एज 15. ठीक है, मैक्सिमम लेंथ मैं 15 रख रही हूँ. तो आयुष जब लिखूंगी ओनली 5 लेटर्स आर बीइंग यूज्ड, बाकी का जो 10 है वो अनयूज्ड है. हितेश का भी 6 इज बीइंग यूज्ड, बाकी का जो अनयूज्ड है वो है वो यूज नहीं हो रहा है. ठीक है, बाकी का जो 15 दिया था ना, मतलब 9 स्पेसेस आर बीइंग अनयूज्ड. अंकिता का भी ऐसे सारे जो अनयूज्ड स्पेसेस हैं, अगर तुम कैट डेटा टाइप यूज करोगे दैट विल रिमेन अनयूज्ड, और वो जो स्पेस रह गया है उसको तुम दूसरे कहीं पे यूज नहीं कर सकते हो. when you are storing the name, it will use those the total length for being stored. 15th का जो मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई किया गया है, पूरा मेमोरी स्पेस वो लेके रहेगा, बाकी का अनयूज रह जाएगा. बट व्हेन यू आर यूजिंग varchar, जितना तुम लेंथ दे रहे हो उतना ही यूज करेगा, बाकी का जो लेंथ है दैट विल बी फ्रेड एंड दैट कैन बी यूज्ड इन सम. इन केस ऑफ varchar, जितना तुम्हें लगा है उतना ही यूज हो रहा है, बाकी फ्री हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल के लिए भी यूज हो सकता है. एक्चुअली व्हाट इज द थिंग, कैड में स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, क्योंकि मतलब पहले से तुम मेमोरी एलोकेट करके रख रहे हो, और varchar में होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. मतलब when you are giving the data, actually the data space is being used then. उससे पहले स्टोरिंग नहीं हो रहा है, यू आर जस्ट गिविंग द लिमिटेशन के मैक्सिमम इतना स्पेस हम यूज करेंगे, लेकिन वो कुछ फिक्स नहीं हो रहा है. एट द टाइम ऑफ गिविंग द डेटा, व्हेन द यूजर इज गिविंग द डेटा, ओनली दैट टाइम द स्पेस इज बीइंग यूज्ड. इसको बोला जाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. पहले जो हो रहा था कैड के साथ वो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कैड एंड varchar. अनदर डिफरेंस क्या है, कैड में क्योंकि हमारे लिए पूरा लेंथ ही हमें यूज हो रहा है, वी डोंट मतलब ये मेमोरी का अंदर का बात है, तुम्हें दिखाई नहीं देगा. अंदर में स्टोरेज एरिया में कहीं पे भी वो जो डेटा है उसका जो लेंथ है, उसका लेंथ कैलकुलेशन लिखा हुआ नहीं रहता है. बट इन केस ऑफ varchar, टोटल लेंथ कितना यूज हो रहा है उसके लिए एक बाइट यूज होता है, कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. उसका जो एक बाइट है वो मेमोरी के अंदर तुम्हें नहीं दिखेगा. मैं बार बार बोल रही हूँ, व्हेन यू एज अ यूजर इज सीइंग द डेटाबेस, यू विल नॉट सी दैट, बट इन द मेमोरी it will be stored, the length of the string will be stored. Okay, in the memory it will be stored. और कैड में ये जो लेंथ है वो स्टोर नहीं होता है. एक डिफरेंस है, क्यों स्टोर नहीं होता है उसका जरूरत नहीं है, पूरा जो स्पेस है वही यूज होगा. varchar में डिफर कर रहा है, इसलिए टोटल लेंथ जो है वो स्टोर हो रहा है. सेकंड डिफरेंस. ठीक है, तो ये जो दो है, ये दो मेनली दो डिफरेंस है. और है एक यूज के पर्पस, when you will go use the cat data type and when you will use the varchar data type. Say what you are storing has fixed length. For example, say you are storing the Aadhaar card number, it has always a fixed length. So in that case you may use cat data type. ठीक है, बट वेन द डेटा विल बी अ वेरिएबल लेंथ, तुम्हें नहीं पता कि वो 3 कैरेक्टर का होगा या 10 कैरेक्टर के होगा या 15 कैरेक्टर का होगा, for example name, then you should use the varchar data type. Everybody got the difference between CAD and varchar data type? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then there is another data type, int. What type of data do we store in int data type? What type of data do we store? Integer. Integer type of data. That means whole number. What type of data is being stored in float? फ्लोट में किस तरह का डेटा यूज होता है?
Decimal type. Decimal type. Can anybody give me example? What will be the, say I have a data base, I have a relation where a float number is there. सोचो कि relation का number है items, ठीक है, तो उसमें item name and price दोनों field है. तो फील्ड प्राइस में जब हम वैल्यू एंटर करेंगे, व्हाट विल बी द इंसर्ट क्वेरी, व्हाट विल बी द सिंटैक्स ऑफ इंसर्ट क्वेरी व्हेन वी आर गोइंग टू इंसर्ट द फ्लोट वैल्यू. हम लोग इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट इनटू प्राइस, सॉरी, इंसर्ट इनटू आइटम वैल्यूज, देन उसके बाद आइटम नेम आ जाएगा सिंगल कोट में. और फ्लोट डेटा टाइप हम कैसे देंगे? फ्लोट का डेटा हम इंसर्ट कैसे करेंगे? या फिर क्रिएट से स्टार्ट करो. हम जब क्रिएट का जब हम कमांड लिख रहे हैं, सोचो कि लेट मी ओपन द MySQL. सोचो कि हम आइटम नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं. एक तो दे दिया आइटम नेम, इसका डेटा टाइप हो गया varchar. अब मैं ये जो प्राइस लिखूंगी, प्राइस के बाद क्या लिखूंगी बताओ? फ्लोट है इसका डेटा टाइप. सो व्हाट शुड आई राइट? एनीवन? फ्लोट डेटा टाइप क्रिएट कैसे करते हैं? मैम फ्लोट के लिए तो फ्लोट लिखेंगे ना. हाँ, फ्लोट लिखेंगे, उसके बाद फ्लोट लिख दिया, देन साइज में क्या लिखेंगे, यही मैं जानना चाहती हूँ. साइज में क्या लिखेंगे बताओ? एनीवन नोस? नो मैम. साइज में हम दो वैल्यूज लिखते हैं फ्लोट में. सोचो कि 8,2 लिख दिया. इसका मतलब ये है कि टोटल डिजिट्स तुम यूज कर सकते हो 8. उसके अंदर लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा पॉइंट के बाद का. हियर इज द स्पेशलिटी ओनली. बाकी सब सेम है जैसे हम इंटीजर यूज करते हैं, ठीक है. सो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द टोटल साइज, कॉमा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स चाहते हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 0 डिजिट, डेसिमल के बाद जितना डिजिट चाहते हो वो वाला. ओके, अंडरस्टूड? डेसिमल को इंक्लूड बताओ. करके टोटल 8 होगा तो. डेसिमल की इंक्लूड करके, हाँ, डेसिमल को इंक्लूड करके टोटल 8. ओके मैम. ओके, दिस इज फॉर फ्लोट डेटा टाइप. बाकी सब सेम होता है. हाँ, अच्छा, देन I am coming to the most important data type, that is date data type. Any date function have you done in previous class when sir was doing MySQL? Date function कुछ करवाए थे? यस मैम. डेट ऑफ बर्थ.
ओके, डेट ऑफ बर्थ यूज किए थे तुम लोगों ने. ओके, वेरी गुड. नाउ टेल मी, से आई एम गोइंग टू use another, create another data, another table, create table, say EMP. I am going to create EMP. Here I will give E code, that will be integer. अच्छा, वैरकर ही लेते हैं, E001 ऐसे करके लिखेंगे. वैरकर 5 ले लेते हैं. देन E नेम, वैरकर 50. सैलरी ले लेते हैं. और लेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग. डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब ये डेट होगा तो कैसे हम इसको इंक्लूड करेंगे बताओ. कैसे हम देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, ये डिक्लेरेशन कैसे करेंगे डेट का. बताओ, अगर भूल गए हो तो वो भी बताओ. Okay, so I will write here date only, no size is needed to give. ठीक है, जब हम डेट डेटा टाइप देंगे इसका स्पेशलिटी ये है कि कोई भी साइज नहीं लगता है. ओके, हो गया. अब ये बताओ, say I am going to insert a record within the table, in the table EMP. What will be the command for that? insert record का कमेंट क्या होगा? इंसर्ट रिकॉर्ड मैम का कमांड इंसर्ट बताओ. इनटू टेबल EMP. ओके, अच्छा वेट करो थोड़ा, मैं इसका शेयरिंग थोड़ा चेंज करती हूँ. बताओ, इंसर्ट इनटू, क्या लिखेंगे उसके बाद? एम टेबल. नहीं, टेबल नहीं आता है, EMP डायरेक्ट. इंसर्ट कमांड में टेबल नहीं आता है. यस मैम, सिर्फ टेबल नेम. इंसर्ट इनटू EMP, देन फिर वैल्यूज. वैल्यूज, फर्स्ट ब्रैकेट. हाँ फर्स्ट ब्रैकेट दे दिया. देन फिर जो कोड है वो लिखेंगे. डायरेक्ट लिखेंगे या सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे? सिंगल कोड के अंदर. सिंगल कोट के अंदर. सोचो कि E001 दे दिया. फिर क्लोज. फिर कॉमा दे. देन ई नेम, सोचो कि अजय दे दिया. सैलरी सोचो कि 78,000 दे दिया. अब DOJ मुझे बताओ, DOJ को हम कैसे लिखेंगे? डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम कैसे लिखेंगे? सोचो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 19th February 2017. 19th February 2017 है डेट ऑफ ज्वाइनिंग. सो हाउ विल यू राइट? इंसर्ट कैसे करोगे उस वैल्यू को? ईयर, फिर मंथ, फिर डेट. हाँ, पूरा बताओ, सिंटैक्स करके बताओ, क्या लिखेंगे पहले? मैम सिंगल कोट चाहिए या नहीं चाहिए? इसमें नहीं चाहिए. इसमें नहीं चाहिए. अच्छा ठीक है, चलो बताओ. 2017 है ना ईयर. फिर यस मैम. फिर मंथ. इसके पास ही लिख देंगे. अच्छा, 02. सिंटैक्स इसका नहीं याद है ठीक से. Okay, okay, then I am telling. The first thing is you need a single quote. ठीक है,
देन यू नीड ईयर, ये वाला तुमने सही बताया था। उसके बाद वी नीड अ हाइफन, ठीक है। देन मंथ नंबर, देन अगेन हाइफन, देन क्या बताया था, February 2017, डेट क्या बताया था, 19 शायद, ठीक है, 19 February 2017 ऐसे लिखते हैं, हाँ, इन दिस वे, ओके। Yes, याद ma'am. रहेगा, विद इन Yes, ma'am. सिंगल कोट वाई 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 हाइफन, देन देन हाइफन, देन डी, विद इन सिंगल कोट, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर तुम्हें सिस्टम का डेट देखना है, अगर तुम्हें सिस्टम का टाइम देखना है, अगर तुम्हें डेट फॉर्मेट चेंज करना है, ये सब सारी चीजें देखे थे। दो डेट के अंदर डिफरेंस, एक डेट के साथ कोई एक नंबर ऑफ डेज ऐड करना, ये सारा चीजें हो चुका था। डेट के अंदर बहुत सारी चीजें आते हैं। No, ma'am. ओके, सो लेट अस डिस्कस दोस थिंग्स। वेट अ मिनट। Say, I want to see the a date in a particular format, okay. Okay, so I have already created a table named birthday. So from here, all of you see in which format. This is the default format, year, month, day. This is the default format. जो default format हमने use किया है उसी format में ये दिखाएगा पहले, ठीक है। Now say I want to see the date of birth in some particular format. So for that we may use the query like this. पहले मैं query लिख रही हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि क्यों ऐसे query मैंने लिखा। देखो, से आई वांट टू शो लाइक दिस 15 सितंबर 2004 ऐसे करके मैं दिखाना चाहती हूँ। तो इसके लिए हमें ऐसा क्वेरी लिखना है, कैसे, डीओबी अगर हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो इस फॉर्मेट में दिखाएगा। नाउ आई वांट टू चेंज द फॉर्मेट, सो फॉर चेंजिंग द फॉर्मेट व्हाट वी हैव टू यूज द डेट फॉर्मेट फंक्शन। डेट फॉर्मेट फंक्शन यूज करना है। उसके अंदर क्या क्या आर्गुमेंट देंगे, पहले देंगे कौन सी फील्ड का हम दिखाना चाहते हैं, डीओबी का दिखाना चाहते हैं, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कैसे तुम दिखाना चाहते हो। ये सारे जो परसेंटेज के साथ जो आते हैं मैं एक एक करके बताऊंगी डिफरेंट एग्जांपल्स में, ठीक है। परसेंट डी का मतलब, परसेंट एम का मतलब, परसेंट वाई का मतलब, और भी बहुत सारा आता है, वो भी मैं बताते जाऊंगी। नोट करते रहना, या फिर बाद में फिर से ये वीडियो देख के बाद में क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लेना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स, ऑफ दिस ऑप्शंस, ठीक है। परसेंट डी, परसेंट कैपिटल डी, परसेंट कैपिटल डी में क्या आता है, ऐसे टीएच या एसटी या एनडी या आरडी जो भी कुछ सफिक्स होता है वो ऐड हो जाता है। मतलब तुम 1 एसटी आएगा, 2 एनडी आएगा, 3 आरडी आएगा, ऐसे करके। तो 15 सितंबर हम देखना चाहते हैं, तो 15th लाने के लिए आई हैव यूज्ड परसेंट डी, कैपिटल डी। परसेंट स्मॉल डी अगर दोगे तो सिर्फ 15 आएगा, परसेंट कैपिटल डी दिया है इसीलिए टीएच आ रहा है, ओके। देन हमें क्या देखना है, हमें देखना है पूरा फॉर्मेट आएगा सिंगल कोट के अंदर। हमें देखना है मंथ, मंथ का पूरा नाम, ठीक है। पूरा मंथ का नाम देखने के लिए परसेंट कैपिटल एम, ओके। 15 सितंबर पूरा मंथ का नाम, परसेंट कैपिटल एम, देन कॉमा, एक कॉमा आ गया, 15 सितंबर कॉमा, ओके। देन पूरा 4 डिजिट का ईयर अगर देखना चाहते हो तो कैपिटल वाई, अगर 2 डिजिट का ईयर देखना चाहते हो तो परसेंट स्मॉल वाई आता है, ठीक है। 4 डिजिट का ईयर के लिए कैपिटल वाई, 2 डिजिट के ईयर के लिए, लास्ट 2 डिजिट के ईयर के लिए स्मॉल वाई। तो फॉर्मेट ऐसे चेंज करता है, डेट फॉर्मेट फंक्शन, देन द फील्ड नेम, देन द फॉर्मेट यू वांट टू हैव, उस फॉर्मेट के अनुसार लिखोगे। क्लियर हुआ है ये सबके लिए? Yes, ma'am. ओके,
दूसरा और भी परसेंटेज के साथ मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, एक साथ कुछ बताऊंगी। ओके, अगर सिस्टम डेट देखना चाहते हो, सिस्टम डेट मतलब तुम्हारे कंप्यूटर में जो डेट सेट है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हारे कंप्यूटर में करंट डेट ही सेट है, तो आज के डेट अगर देखना चाहते हो तो इस तरह से आएगा, डेट और टाइम के साथ। एंड यू कैन डू द फॉर्मेटिंग ऑन द सिस्टम डेट ऑल्सो। सिमिलरली सिलेक्ट देन डेट फॉर्मेट, उसके अंदर सिस्टम डेट डालना है बस, ये डीओबी के जगह पे सिस डेट आएगा, उसके बाद तुम अपने हिसाब से फॉर्मेट दे दो, तो उस तरह से डेट फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ओके, तो मैं एक सिस्टम डेट फॉर्मेट करके दिखाती हूँ। देखो, सिस्टम डेट को डेट फॉर्मेट फंक्शन से सिस्टम डेट को फॉर्मेट करवाया। ओके, देन अगर सिर्फ टाइम देखना चाहते हो, डेट नहीं देखना है, ओनली टाइम देखना है, और दैट ये टाइम दिखाएगा। ओके, नाउ से पर्टिकुलर डेज, कुछ डेट, पर्टिकुलर एक डेट के साथ सोचो कि आज का डेट है, तो इसके साथ अगर मैं 20 दिन जोड़ दूं तो कौन सा डेट आएगा, या फिर 50 दिन जोड़ दूं तो कौन सा डेट आएगा। अगर इस तरह का क्वेरी करना चाहते हो तो उसके लिए एक फंक्शन आता है डेट ऐड, डेट अंडरस्कोर ऐड। Okay, date underscore add is the function, then you will give the date within single quote, जो date देना है वो date दोगे, then interval कितना दिनों के बाद का date तुम्हें चाहिए वो date। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 जनवरी 2008 का 31 डेज के बाद कौन सा डे आ रहा है, ये उसका है। ठीक है, देन अगर पर्टिकुलर कुछ टाइम भी ऐड करना चाहते हो कि इतना आवर इतना मिनट इतना सेकंड के साथ, अगर इतना, या फिर करंट टाइम के साथ इतना आवर इतना मिनट अगर ऐड कर देंगे तो कौन सा टाइम आएगा, तो इस तरह से कर सकते हो। अभी का जो टाइम है उसके साथ 1 आवर 5 मिनट 9 सेकंड ऐड करने के बाद इतना आएगा। देन दो डेट्स हैं, दोनों डेट है, दोनों डेट के अंदर कितना डिफरेंस है, ये अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा, द फंक्शन इज डेट डिफ। ठीक है, नया वाला डेट आगे आएगा, पुराना वाला डेट पीछे आएगा। ठीक है, अगर उल्टा करोगे तो माइनस में वैल्यू आएगा, देगा वैल्यू माइनस में आएगा। दो डेट के अंदर डिफरेंसेस, कितना डेज हो रहा है। अच्छा, अब डेट फॉर्मेट यूज करके ऑब्वियसली हम सिर्फ डे देख सकते हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग द डेट फॉर्मेट से इफ वी वांट टू सी ओनली द डे, मतलब डेट कौन सा है सिर्फ वो देखना चाहती हूँ, मंथ और ईयर देखना नहीं चाहते, सो फॉर दैट वी कैन यूज द डे फंक्शन। इसमें डेट फॉर्मेट फंक्शन नहीं यूज किया है, डे फंक्शन यूज किया है। सिमिलरली अगर डे का नाम देखना चाहती हूँ, मतलब संडे है या मंडे है या ट्यूसडे है, ऐसे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए डे नेम वाला फंक्शन यूज होगा, तो वीक का कौन सी डे है वो दिखा देगा। देन अगर डे नेम पूरा नहीं देख के अगर डे नंबर देखना चाहते हो, मतलब संडे का 1, ट्यूसडे का, मंडे का 2, ऐसे करके अगर देखना चाहते हो नंबर, डे नंबर कितना नंबर है डे का, तो और दैट यू कैन यूज दिस वन, डे ऑफ वीक। ठीक है, नंबर में दिखाएगा, यहाँ पे नाम में दिखा रहा है डे नेम में, और नंबर में दिखाएगा डे ऑफ वीक इसमें। अगर सिर्फ ईयर देखना चाहते हो, only year will be shown। सिर्फ अगर मंथ देखना चाहते हो, month will be shown।
अगर मंथ नेम देखना चाहते हो, मंथ का नाम दिखाई देगा मंथ नेम फंक्शन से। ओके अब कुछ और डेट फॉर्मेट का मैं सिखाऊंगी, जैसे कि ऑलरेडी %d के %m %y तुम लोगों ने सीख चुके हो। डेट फॉर्मेट में कुछ और परसेंटेज के साथ मैं सिखाऊंगी। सोचो कि तुम्हें डेट ऑफ द नेम ऑफ द डे तुम्हें देखना है, संडे मंडे ऐसे देखना है, लेकिन हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना, पूरा मंडे नहीं लिख के सिर्फ MON मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ डे नेम अगर तुम्हें देखना है, MON ACUN ऐसे शॉर्ट फॉर्म का डे नेम अगर तुम्हें देखना है, सो %A दिस फॉर्मेट विल बी यूज फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ डे नेम। %A देखो आज का डेट है फ्राइडे, FRI दिखा रहा है। ओके देन अगर तुम मंथ का नाम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हो तो %B मंथ का नाम शॉर्ट में आएगा। अगर %D तो $D तो तुम लोग कर ही चुके हो। अगर स्मॉल d दे रहे हो तो ऑब्वियसली 2 डिजिट का डेट आएगा, फिर भी मैं एक बार करा के दिखा देती हूँ। 2 डिजिट का डेट आएगा। %D कैपिटल D लिखने से तो सबको याद ही होगा, 14th ऐसे आता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल d एंड कैपिटल D। अगर सिर्फ आवर देखना चाहते हो, ओनली द आवर यू वांट टू सी, कैपिटल H, और देखो ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में 1 बजे हैं तो 13 दिखा रहा है। इसी को अगर स्मॉल h कर दोगे तो 12 आवर्स के फॉर्मेट में दिखाता है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल H एंड स्मॉल h। देन पूरा मंथ का नाम देखने के लिए कैपिटल M तो जानते ही हो, सिर्फ मंथ नंबर देखने के लिए स्मॉल m। मंथ नंबर देखने के लिए स्मॉल m, पूरा मंथ का नाम देखने के लिए कैपिटल M। AM या PM देखने के लिए %P। अब देखो PM है तो PM दिखा रहा है, सुबह करते तो AM दिखाता। ठीक है, वीक को अगर पूरा देखना चाहते हो, हमने पहले शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वीक सीखे थे, पूरा अगर वीक देखना चाहते हो %W। ठीक है, कैपिटल Y और स्मॉल y का डिफरेंस याद है? कैपिटल Y और स्मॉल y का क्या डिफरेंस बताया थी मैंने? देखती हूँ किसको याद है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन %Y एंड %स्मॉल y? कैपिटल Y में पूरा ईयर आएगा और स्मॉल y में लास्ट का 2 डिजिट आएगा सिर्फ। Very good. This is the two difference. Okay. So all these functions you have to remember, क्योंकि किस फॉर्मेट में डेट फंक्शंस के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेरी में ऐसा बता भी सकता है कि डे ऑफ द वीक प्रिंट करो। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस फंक्शंस। ठीक है, और एक चीज तुम लोगों को बताना है, तुम लोग शायद सुने भी हो, इस बार जो टेस्ट होने वाला है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, MCQ में नहीं होगा। Have you heard this thing, everybody? Yes, ma'am. So उनमें से 12 साइंस के लिए कंपल्सरीली स्टैक के ऊपर तो एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, बिकॉज दिस इज द ओनली डेटा स्ट्रक्चर पोर्शन यू हैव। फाइनल में भी स्टैक के ऊपर क्वेश्चन कंपल्सरी है, बिकॉज वहां से तो एक क्वेश्चन आना ही है और ऑप्शन कुछ नहीं है। सो इट इज कंपल्सरी फॉर यू। और MySQL से भी क्वेश्चन होगा, डेफिनेशंस होंगे, और थोड़ा बहुत जितना दूर क्वेरी होगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्रिएशन ऑफ अ टेबल, सिलेक्शन का एकदम बेसिक क्वेरी ऑन सिलेक्शन, और ये डेटा टाइप के ऊपर जितना मैं सिखाऊंगी ये सारा क्वेरीज उसमें आएगा।
Okay. Then any question regarding the date functions now? डेट फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है किसी का, डाउट है किसी का? Okay, so I am stopping the recording here.